চি কি লাজৰ বিষয় সমগ্ৰ বিশ্বতে নাক কাণ কাটিলে ভাৰতৰ আনৰ সৃষ্টিৰাজিক নিজৰ সৃষ্টি বুলি প্ৰদৰ্শন কৰি বাবা ল'বলৈ বিচাৰিছিল বিজেপিৰ এআই সন্মিলনত পিছে তথ্য পৰ্যালোচনাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিল প্ৰকৃত সত্য চীনা প্ৰডাক্টসমূহকে ভাৰতীয় প্ৰতিভা বুলি প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিজেপিৰ এআই সন্মিলনত যাৰ বাবে সন্মিলন স্থান ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰদৰ্শনীত ভাগ লোৱা সেই কৰ্তৃপক্ষই নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অতি ধুমধামেৰে আৰম্ভ হোৱা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা সন্মিলনত ঘটিল এক অতি লজ্জাজনক ঘটনা চীনৰ ৰবটিক কুকুৰক ভাৰতীয় উদ্ভাৱন বুলি দাবী কৰিছিল উক্ত সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা গলগটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা ৰবটিক কুকুৰক তেওঁলোকৰ নিজা উদ্ভাৱন বুলি দাবী কৰিছিল গলগটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু পাছত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি উক্ত ৰবটটো চীনৰ কোম্পানী ইউনিট্ৰি নিৰ্মিত জিঅ'2 মডেলৰ বুলি চিনাক্ত হয় আনকি যি মডেল চীনৰ কোম্পানীৰ হয় সেই মডেলক ভাৰতৰ বুলি নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এই ছবিখনলৈ মন কৰক এই ছবিখন সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰিছে তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে য'ত তেওঁ দাবী কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ছভাৰেইন মডেলসমূহে বিশ্বব্যাপী উন্নত মানদণ্ডৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ছভাৰেইন ষ্টকৰ সফলতাই আমাৰ অভিযন্তা আৰু উদ্ভাৱকসকলৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বৰ চিনস্বৰূপ কিন্তু তাতেই ঘটিল এক আচৰিত ঘটনা আচলতে এই ছবিখনত দেখা গৈছে গলগটিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা ৰবটিক কুকুৰ এই ৰবটিক কুকুৰটোৰ মডেলক গলগটিয়া ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নাম দিছিল উৰায়ন কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে যি ৰবটিক কুকুৰক নিজৰ মডেল বুলি দাবী কৰিছিল গলগটিয়া ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অৱশ্যে সেই মডেল ভাৰতৰ নহয় সেই মডেল হ'ল চীনৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী অধ্যাপকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছিল যে তেওঁলোকে ৩৫০ কোটি টকা খৰচ কৰি গৱেষণাৰ জৰিয়তে চোৱাংচোৱাগিৰি কৰিব পৰাকৈ এটা ৰবট সাজি উলিয়াইছে কিন্তু আচলতে সেইটো আছিল চীনৰ এটা ব্যৱসায়িক ৰবটিক কুকুৰ যাৰ বজাৰ মূল্য মাত্ৰ ২,৩০,০০০ টকাৰ ওচৰা-ওচৰি অৱশ্যে এই মিছা দাবী ধৰা পৰাৰ লগে লগে গলগটিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিনিধিক সন্মিলনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হয় তদুপৰি পাছত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ক্ষমা বিচাৰি কয় যে তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ এগৰাকী সদস্যই ভুল তথ্য দিছে অৱশ্যে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক মহলতো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এই সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোক চৰকাৰৰ কেৱল এক প্ৰচাৰ অভিযান বুলি কটাক্ষ কৰিছে তেওঁ অভিযোগ কৰিছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতৰ প্ৰতিভা দেখুওৱাৰ সলনি চীনৰ সামগ্ৰীক ভাৰতীয় বুলি চলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে উক্ত বিষয়টোক লৈ বহুজনেই বহু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এআইচিচিৰ মিডিয়া প্ৰচাৰ বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেৰাই উক্ত বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে চৰকাৰক दोस्तों एआई इम्पैक्ट समिट यहां दिल्ली में ही चल रहा है कुछ दूर यहां से एआई इम्पैक्ट पूरे विश्व में इस समिट का क्या हुआ वो आप सबके सामने है शर्म के मारे सर सबका झुक चुका है अश्विनी वैष्णव जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ झंडा गाड़ कर ही आते हैं एआई अब अश्विनी इज इनकॉम्पिटेंट के नाम से जाना जाता है बिना पटरी के रेल चलाने वाला ये मंत्री अब कहता है साहब बिना वाईफाई बिना लैपटॉप के जाइए एआई समिट अटेंड करिए पूरा हॉल खाली करा दिया क्यों क्योंकि मोदी जी आ रहे थे रील्स बनानी थी अरे रील्स बनानी थी फोटो खिंचवानी थी पोज करना था मोदी जी को तो साहब एक हफ्ता पहले ये समिट कर देते अश्विनी वैष्णव जी जिसमें किसी और को मत बुलाते आप दोनों अपना जम के रील बाजी खेलते फिर बुलाते मेहमानों को मेहमानों के सामने क्यों नाक कटवा रहे हैं साहब फिर आया गलगोटिया मोदी जी का प्रिय गलगोटिया नेहरू जी के वक्त आईआईटी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और यहां क्या है गलगोटिया अब गलगोटिया ने क्या किया साहब मेड इन चाइना का एक प्रोडक्ट लाए ड्रोन लाए और एक रोबोडॉग लाकर रख दिया कहा साहब ये देखिए भारत कितना आगे बढ़ चुका है और अश्विनी वैष्णव ने जमकर डींग भांगी दूरदर्शन तो शुरुआत चाटुकारिता शिरोमणि है जैसा फिर जब मालूम पड़ा कि साहब ये तो चीप माल है चाइना का अब आनंद फानंद में बोला साहब बोरिया बिस्तर लपेटो गलगोटिया को रवाना किया गलगोटिया कहता है हम तो मोदी जी की विजन पे चल रहे हैं हम मानते हैं गलगोटिया की कोई गलती नहीं है मोदी जी की विजन ही पर चल रहे हैं ऑल पैकेजिंग नो कंटेंट ये है मोदी जी की विजन तो वो गलगोटिया तो बेचारा वही कर रहा है जो मोदी जी चाहते हैं लेकिन जो एआई समिट जो एआई इंपैक्ट समिट एक फ्यूचर इनोवेशंस के लिए डिस्कशन होना था एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना था उसको एक
चीप चाइना बाजार बनाने का जो काम किया अश्विनी वैष्णव ने, उसमें देश उन्हें माफ नहीं करेगा। देश की जेन जी उनको माफ नहीं करेगी। क्यों नाक कटवा रहे हो साहब, लगातार नाक कटवा रहे हो। खैर, जो बादल, रेडार, नाला, गैस, इस मानसिकता, इस तरह के लोग हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? उन्हें तो इसी में आनंद है और मोदी जी को कोई नुकसान नहीं है। अब एआई अगर अश्विनी इनकॉम्पिटेंट है या एआई हरदीप का आर्टिफिशियल इनोसेंस है, आर्टिफिशियल इनोसेंस हो या कुछ हो, लेकिन मोदी जी के लिए हर चीज इवेंट है। इसमें कल, आने वाले कल, टुमारो, मोदी जी का एक पप्पी जप्पी फेस्ट है। उनके लिए ये सब पप्पी जप्पी फेस्ट है, जहां बड़े बड़े देश विदेश के लोग आते हैं, सुंदर पिचाई, ये वो सबके साथ ही करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलाएंगे, जबरदस्ती गले पड़ेंगे, वो सब करेंगे। उनके लिए सफल आयोजन वही होता है जहां वो गले पड़ सके या गले मिल सके। देश की छवि गई भाड़ में। अब ये चलेगा नहीं। लोग हैरान हैं कि जिस व्यक्ति को अडवाणी जी एक सफल इवेंट मैनेजर कहते थे, वो इवेंट तक सफलतापूर्वक नहीं करा सकता। शर्म आती है देखकर। जय हिंद। আনহাতে কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে গলগটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই নাভুত নাচৰুট কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে দিল্লীত অনুষ্ঠিত এই এআই সামিট প্ৰযুক্তিগত উদ্যমিতাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটোশ্বুটৰ এক স্থানত পৰিণত হৈ পৰিল। এআই সন্মিলনত বৃহৎ প্ৰদৰ্শনী কক্ষ খালী কৰি দিবলগীয়া হ'ল, কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী আগমনৰ বাবে মুকলি স্থানৰ প্ৰয়োজন আছিল। তদুপৰি এই এআই সন্মিলনত কেমেৰা আৰু লেপটপ পৰ্যন্ত ভিতৰলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি নাছিল। মুঠৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ অব্যৱস্থাপনা। আনকি যিখন এআই সন্মিলনত প্ৰযুক্তিৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু, তাতেই সেই সন্মিলনত অহালৈকে খোৱা বস্তু পৰ্যন্ত ডিজিটেল মাধ্যমেৰে নহয়, বৰং নগদ পইচাৰে ক্ৰয় কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। গতিকে এই সন্মিলনত হোৱা অব্যৱস্থাপনাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? एआई की बड़ी धूम मची हुई थी। एक एआई समिट भी ऑर्गेनाइज करी जा रही है यहीं दिल्ली में। लेकिन वो एआई समिट जो थी, वो बजाय टेक एंटरप्रेन्योर्स के, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हम देखें, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की डेन और प्रधानमंत्री के फोटोशूट की जगह बन गई। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मेन हॉल को खाली करवा दिया गया? ये वो हॉल था जहां पर लोगों ने पवेलियंस, या जिसको अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की जगह कहते हैं, पैसे देकर ली थी, वहां से उनको निकाल दिया गया। कुछ फाउंडर्स ने तो ये तक कहा कि उनका टेक्नोलॉजी का जो सामान था वो भी चुरा लिया गया। यही नहीं, बहुत सारे फाउंडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत आई क्योंकि वहां पर एक स्टेबल इंटरनेट नहीं था। उसके बाद अगर आप गाड़ी या बाइक से आए तो चाबी फेंक दीजिए, क्योंकि चाबी अंदर लाना अलाउड नहीं है। टेक समिट में कैमरा और लैपटॉप अंदर लाना अलाउड नहीं है। और यही नहीं, 4-4 घंटे लंबी लाइनें लगी हुई थी, जबकि लोगों ने जो ऐप होता है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। इतने बड़े टेक इवेंट में कैश से ही पानी और खाना मिल रहा था, डिजिटल पेमेंट तक नहीं हो रहे थे। लोगों ने इस पर बहुत सारा खेद और आक्रोश जताया है और कहा है कि ये जो एआई समिट थी, इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रावस था वो झलकना चाहिए था। झलका मोदी जी का रील बनाना और वहां पर सरकारी बाबुओं का आवागमन। असलियत यह है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली जिम्मेदारी थी, ऑर्गेनाइजर जो प्रमुख है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके मंत्री हमारे रील मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी मोदी जी की रील को तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसकी असल जिम्मेदारी किसकी है। अब वो इस असफलता का, इस कंफ्यूजन का, इस केओस का ठीकरा किसके सिर फोड़ेंगे? क्या राहुल गांधी जी की गलती है या पंडित नेहरू जी की गलती है? आप बताइए अश्विनी वैष्णव जी, अपनी नेक्स्ट रील बनाने से पहले। असलियत यह है कि भारत मंडपम जहां पर वो हो रहा है, वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोका गया है, वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, और उसके बावजूद हमारे टेक एंटरप्रेन्योर्स अपना सिर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जगहें हमारे लिए थी, जिसको हमने पैसे देकर लिया, वहीं से हमें बाहर खदेड़ दिया गया। इंटरनेट तक का ना होना, ये कंफ्यूजन और ये केओस मोदी जी और उनकी सरकार का ट्रेडमार्क बन चुका है, क्योंकि हर चीज फोटो ऑप है, कोई चीज समिट नहीं है, फोटो ऑप है। मोदी जी की रील बनाने का नया जगह थी है, और वही हुआ। टेक एंटरप्रेन्योर्स रो रहे हैं, मोदी जी ऐश से अपनी रील डाल रहे हैं। उल्लेखযোগ্য যে গলগটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অদ্ভুত কাণ্ড ইয়াতে অন্ত নপৰে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই এআই সন্মিলনত আৰু এটা অতি আচৰিত উদ্ভাৱন প্ৰদৰ্শন কৰে। ভালদৰে চাওক এই অদ্ভুত উদ্ভাৱন। থাৰ্মোকলেৰে নিৰ্মিত, প্লাষ্টিকেৰে বন্ধা এই এৰোপ্লেনখন সঁচাই কোনেও নেদেখা উদ্ভাৱন। देख रहे हो गंगोटिया का इधर विमान गिर गिर के चल गए, नकली वाले लेके चले गए
और देखो ये असली वाले छोड़ के चले गए। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है भाई, अपना सामान लेके जाओ और उसको चाइना वालों को वापस करो गंगोटिया वाले। ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा नाम गंगोटिया नहीं लंगोटिया होना चाहिए। जिस तरह से तुम फ्रॉड कर रहे हो ना, पूरा गुड़ गोबर करके रायता फैला दिया। पूरा कर्म करने आए कि कांड करने आए थे? हाँ, पूरा बेइज्जती करवा दी हम लोगों की। গালগটীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এয়া উদ্ভাৱন নে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এটা বৃহৎ কৌতুক? মুঠৰ ওপৰত প্ৰযুক্তিগত উন্নয়নৰ নামত বিজেপিৰ এআই সন্মিলনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ মৰ্যাদাক এক বৃহৎ কৌতুকত পৰিণত কৰিছে বুলি এতিয়া ক'ব পাৰি। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট।